Hello viewers, students. Today's topic for discussion is pathophysiology of schizophrenia. I am Saraswati Patel, research scholar from Barisali, Vidyapith. The contents will be introduction, causes, clinical manifestations, pathophysiology, management of schizophrenia, summary and references. So coming to the introduction part, psychosis are major psychiatric disorders. So what is psychosis? It is a severe mental disorder in which thought and emotions are so impaired that contact is lost with external reality. अब ये साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में ये अफेक्ट करते हैं मेनली मेंटल एंड बिहेवियरल एक्टिविटीज को, जिसकी वजह से डिस्टरबेंसेस होती हैं मेंटल कैपेसिटी में, मूड स्विंग्स होती है, इमोशंस में फ्रिक्वेंटली चेंजेस आते हैं, फिर रियलिटी डिस्टर्ब होती है, कम्युनिकेशन एंड पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस में डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से डे टू डे लिविंग में इम्पेयरमेंट आती है. ओके, Majorly, there are three types of functional brain disorders. We are only talking about brain disorders according to their functions. So, first is minor psychiatric illness or neurosis. So, what is neurosis? Neurosis is a relatively mild mental illness that is not caused by organic diseases involving symptoms of stress. So, it is mainly caused by depression, anxiety, obsessive behavior. Okay. Second is psychosis, which we have described, and third is affective psychosis, including mental depression, mania, and bipolar affective psychosis. So, what is mania? What is mania? Mania is extremely elevated and excitable mood, usually associated with bipolar disorder. That means जब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेशन होगा, मूड बिल्कुल ही एक्साइटेड स्टेट में होगा, दैट स्टेट इज नोन एज मैनिया और मैनिक डिसऑर्डर, एंड इट इज रिलेटेड विद बाइपोलर disorder. What is bipolar disorder? It is a disorder associated with episodes of mood swings ranging from depressive lows to manic highs. Bipolar, the word defines bi, मतलब इसमें दो एपिसोड्स आती हैं, दो फेजेस आती हैं. एक क्या है कि या तो ये बिल्कुल ही डिप्रेशन हो जाएगा या फिर ये बिल्कुल ही हाई एक्टिविटी शो करेंगे, एक्साइटेड स्टेट शो करेंगे. जैसे इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि रिस्की बिहेवियर होगा, एलिवेटेड मूड हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकती हैं. ठीक है, ओके. Schizophrenia is the most common psychotic disorder. So now we will define what is schizophrenia. It is a mental disorder in which people interpret reality abnormally. That means जो reality है उसको वो abnormally treat करेंगे, उसे reality को abnormally interpret करेंगे. और ये mainly start होता है adolescence stage से, early adulthood phase से start होता है, और इसमें mainly distortion होती है thinking में, perception में, emotions, language, सेंस ऑफ सेल्फ एंड बिहेवियर. बहुत चेंजेस आते हैं बिहेवियर में. वर्ल्ड वाइड सिजोफ्रेनिया को डिसेबिलिटी के साथ रिलेट किया गया है, बट मेनली डिसेबिलिटी कहाँ पे? एजुकेशन एंड इन टर्म ऑफ ऑक्यूपेशन परफॉर्मेंस. सो इन दीज टू एरियाज schizophrenia affects the most. नेक्स्ट थिंग कि जिन पीपल को साइजोफ्रेनिया होता है वो 2 to 3 टाइम्स पहले उनकी डेथ की चांसेस होती हैं देन नॉर्मल पॉपुलेशन. The thing is that, good thing is that schizophrenia is treatable. Treatment with medicines and psychosocial support is effective in this case. So what are the causes? First is genetic. What is genetic? Genetic, this is a branch of biology which mainly concerned with study of genes, genetic variations and heredity. That means कि if the variation has taken place in genes, or this disease can be passed from heredity, means ancestors. We can get this disease from ancestors. Second is structural changes in the brain. Then normal functioning of the brain will get changed.
in third is previous drug use, and fourth is environmental risk. So coming to the clinical manifestation part, all schizophrenic suffers disruption of thought and affect and disturbances in interpersonal relationships. Mainly, it is divided into two parts, acute and chronic psychosis. So first we will go with acute psychosis. Symptoms of acute psychosis, first is hallucination, mostly auditory. मतलब कि कुछ ऐसे शब्द उन्हें सुनाई देंगे, ऐसी बातें सुनाई देगी जो सच नहीं है. They will hallucinate. Second is delusions, that is false belief, and at that false beliefs they are fixed with. Third is ego boundary disruption. Then what is ego boundary? Ego boundary is that individuals are able to distinguish between self and not self. But if ego boundary is disrupted, that means the person is not able to distinguish between self and not self. Next is passivity. Passivity. What is passivity? This is acceptance of what happens or without active responses. Next is withdrawn behavior. Withdrawn behavior is avoiding or not seeking out social contact. मतलब सोसाइटी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, अकेले में बैठना. Okay, next is thought broadcasting. What is thought broadcasting? It is the belief that others can hear or are aware of an individual thought. मतलब ऐसा लगता है जैसे कि जो पेशेंट सोच रहा है वो दूसरों से सुन सकते हैं. Okay, next is flat or inappropriately labile affect. This is pathologically laughter and crying. This is mainly characterized by involuntary and uncontrollable reaction of laughter or crying that just proportionate to an event. Okay, coming to symptoms of chronic psychosis. In this, what happened? Life of intermittent acute episodes means at irregular intervals they will get acute episodes of schizophrenia. एंड इसमें क्या होगा, सोशल डिस्ट्रप्शन हो जाते हैं बिटवीन अक्यूट एपिसोड्स. एंड ट्रीटमेंट एक्यूट एपिसोड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एबल टू करेक्ट द साइकोसोशल इम्पेयरमेंट. मतलब जो हमारी बॉडी में चेंजेस हो रही हैं, जो ब्रेन में चेंजेस हो रही है, उसे हम ट्रीट कर सकते हैं, बट जो साइकोसोशल इम्पेयरमेंट होती है उसे ठीक करना मुश्किल है. Okay, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders classifies the symptoms of schizophrenia into two groups. First is positive symptoms and second is negative. And positive include delusions, hallucinations, thought disorders and disorganized speech. But negative symptoms include social contacts, lack of emotion, lack of motivation and anhedonia. इसमें क्या है, जो ये delusions हैं, हेलुसिनेशंस है, थॉट डिसऑर्डर्स है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है, ये पॉजिटिव सिम्टम्स इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ बॉडी में है, इससे हम सोशली अपने आप को अफेक्ट नहीं कर रहे, वी आर वेरी मच अवेयर. बट इन नेगेटिव सिम्टम्स इसमें इमोशंस खत्म हो रहा है, मोटिवेशन खत्म हो रहा है, दैट मीन्स क्या पर्सन डिप्रेशन में आ जाएगा. ओके, पॉजिटिव सिम्टम्स रिस्पॉन्ड टू ड्रग ट्रीटमेंट बट नेगेटिव सिम्टम्स आर रिफ्रैक्टरी. ओके, अब इसमें क्या है कि पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए तो हम ड्रग ट्रीट कर सकते हैं, बट नेगेटिव सिम्टम्स के लिए ये अनमैनेजेबल है, नेगेटिव सिम्टम्स को ट्रीट नहीं कर सकते हैं. कमिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी पार्ट. फॉर दिस schizophrenia, various biochemical theories have been proposed to explain the pathogenesis of schizophrenia. So in that, first is neurodevelopmental abnormality theory. Okay, that means neurodevelopmental abnormality. That means कि न्यूरॉन्स का जब जनरेशन हो रहा है, जब वो डेवलप कर रहे हैं, उस समय उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आ गई है. सो जब फीटस स्टेज है, जब फीटस स्टेज में जब ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, एट दैट टाइम अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई, देन दैट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन सेट्स द स्टेज फॉर द न्यूरोनल डेवलपमेंट. क्योंकि उसी समय जीन्स
बन रही हैं, जीन्स अपने आप को एग्लोमरेट कर रही है वहां पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसी तरीके से जो एबनॉर्मेलिटी आ गई उसी का न्यूरोनल डेवलपमेंट होगा उसी फेज से। अब ये एबनॉर्मल माइग्रेशन होगा इन डिफरेंट न्यूरॉन्स ड्यूरिंग ब्रेन डेवलपमेंट। अब यही एबनॉर्मेलिटी राइज करती है किसे, एबनॉर्मल न्यूरोनल सर्किट्स को इन ब्रेन, जिसकी वजह से ये न्यूरोनल मैचुरेशन जब होता है हमारा, तब ये क्लिनिकल सिम्टम्स अपना शो करती है, दैट इज अ एडोलेसेंस स्टेज। इसमें नॉर्मल क्या हो रहा है, जब ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है ड्यूरिंग फीटल स्टेज, उसी समय कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई ब्रेन में वाइल डेवलपिंग, देन वही जेनेटिक चेंजेस वो प्री डिस्पोज हो गए, वो अपना स्टेज फिक्स कर चुके हैं वाइल डेवलपमेंट। अब ये जो चेंजेस हुए हैं यही एबनॉर्मल माइग्रेशन होंगे न्यूरॉन्स में ड्यूरिंग ब्रेन डेवलपमेंट। अब ये जो एबनॉर्मेलिटी आई है, ये एबनॉर्मल न्यूरोनल सर्किट्स जनरेट करेंगे इन द ब्रेन। दिस सिनेप्टिक डिसऑर्गेनाइजेशन शो क्लिनिकल सिम्टम्स। कब दिखाएगी ये क्लिनिकल सिम्टम्स, एडोलेसेंस स्टेज पे, जो हमने इसके सिम्टम्स में भी पढ़ा है। ओके, सेकेंड इज डोपामीन थ्योरी। Dopamine theory is widely accepted theory for this schizophrenia pathogenesis. Why? Dopamine एक हार्मोन भी है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भी है, और ये सेवरल इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है इन द ब्रेन एंड द बॉडी। डोपामीन के लिए बहुत सारे एविडेंसेस दिए गए। फर्स्ट वाज ड्रग्स विच इंक्रीजेस डोपामिनर्जिक एक्टिविटी, जो कि डोपामीन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। जो ड्रग्स वो वर्स्ट करते हैं सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स को, मतलब जिन भी पेशेंट्स में सिजोफ्रेनिया है उसे अगर हम ऐसी ड्रग दें जो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी शो करते हैं, तो वो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स को और भी एक्सगरेट कर रहे थे और भी वर्स्ट कर रहे थे। सेकेंड वॉज कि ऑलमोस्ट ऑल older neuroleptic drugs are dopamine receptor antagonist. And what are neuroleptic drugs? Neuroleptic drugs have tendency to reduce nervous tension by depressing nerve functions. तो ये क्या करती है, ये नर्व टेंशन को रिड्यूस करती है न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स। तो ये देखा गया कि जितने भी ओल्डर न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स हैं वो डोपामीन रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हैं, मतलब डोपामीन जो कि सिजोफ्रेनिया एक्टिविटी को बढ़ाती है उसको कम करता है न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स। थर्ड वाज postmortem studies on brains of schizophrenics have shown high concentration of dopamine receptor। जो भी schizophrenic patients थे उनकी ब्रेन को जब स्टडी किया गया, उनका पोस्टमार्टम किया गया, तो उसमें डोपामीन रिसेप्टर्स बहुत ही ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में मिला था। नेक्स्ट इज पोजिट्रोन एमिशन थ्योरी के थ्रू भी देखा गया कि लिविंग schizophrenics have also shown high dopamine receptor density in some part of brain। schizophrenic patient के ब्रेन में बट ये स्टडी की गई तो वहां पे भी डोपामीन रिसेप्टर की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट इज इट वाज फाउंड टू बी वेरी गुड कोरिलेशन बिटवीन क्लिनिकल पोटेंसी ऑफ न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स। न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स जो मैंने बताया जो कि न्यूरोनल टेंशन को कम करती है, एंड देयर डोपामिनर्जिक D2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी, मतलब ये क्लिनिकल पोटेंसी थी न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स की और डोपामिनर्जिक D2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी की, इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन है। Next is amygdalus and temporal lobe of schizophrenia patients have been found to contain high concentration of dopamine than normal subjects। schizophrenic patient में ब्रेन के amygdalus में और temporal lobe में भी high concentration of dopamine मिला था than normal subjects जब comparison की गई। ओके, थर्ड इज 5ST थ्योरी और सेरोटोनिन थ्योरी। तो ये सेरोटोनिन थ्योरी क्या है, सेरोटोनिन पहले क्या है, ये एक केमिकल है जिसका कि वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस है हमारी बॉडी में, ठीक है। इसे हम हैप्पी केमिकल कहते हैं। दैट मीन्स कि जब हम खुश होते हैं तब ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है सेरोटोनिन, ठीक है। अब ये सेरोटोनर्जिक जो न्यूरॉन्स है, सेरोटोनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक नर्व फाइबर्स, ये ह्यूमन ब्रेन में ऑलमोस्ट सिमिलर है। मीन्स ये ह्यूमन ब्रेन में ऑलमोस्ट एक जैसे ही
मिलते हैं। तो ये देखा गया कि डोपामिनर्जिक का जो एक्सॉन है वहाँ पे भी 5-HT के रिसेप्टर्स मिलते हैं। ठीक है, अब 5-HT मतलब सेरोटोनिन का रिसेप्टर्स है वहाँ पे। अब 5-HT क्या करता है कि ये डोपामीन के रिलीज को कम करता है। डोपामीन के रिलीज को कम करेगा बाय एक्टिंग ऑन दीज रिसेप्टर्स, क्योंकि डोपामीन अगर इंक्रीज होगा देन इट इज गोइंग टू लीड साइकोसिस। ये 5-HT रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर, ये इसके रिलीज को कम कर देते हैं, डोपामीन के रिलीज को। ओके, सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स में पेरिफेरली सेरोटोनर्जिक कॉन्सेंट्रेशन हाई देखी गई है। जो भी सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स थे उनमें 5-HT का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिला है पेरिफेरली। ओके, और तो और क्या है, 5-HT का एंटागोनिस्ट, सेरोटोनिन का एंटागोनिस्ट लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, वो देखा गया कि ये हेलुसिनेशन कॉज करता है और अदर सेंसरी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया। सेरोटोनिन का एंटागोनिस्ट एक ड्रग है, एंटागोनिस्ट लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, वो भी हेलुसिनेशन कॉज करता है और अदर सेंसरी डिस्टर्बेंसेस कॉज करते हैं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया कॉज करता है। ओके, अब सेरोटोनिन का भी जो उसके मेटाबोलाइट्स हैं, एक मेटाबोलाइट है जैसे डाइमिथाइल ट्रिप्टामीन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हायर देखी गई है सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स में। ओके, अब एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स जो ड्रग्स होती हैं जैसे कि क्लोजापिन, वो हमारी पोटेंट ड्रग्स है जो कि सिजोफ्रेनिक सिम्टम्स को रिवर्स करती हैं। okay, मतलब सिजोफ्रेनिया को वो ठीक करती है, एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग्स। ओके, रोल ऑफ नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन क्या है, नॉरएड्रेनालिन हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं, स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती हैं। तो पेशेंट्स जिसमें क्रोनिक साइजोफ्रेनिया है उसमें इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन लिम्बिक सिस्टम में देखा गया, और हाई नॉरएड्रेनालिन के कॉन्सेंट्रेशन वो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अफेक्टिव कॉम्पोनेंट ऑफ साइजोफ्रेनिया। ठीक है, नॉरएड्रेनालिन कॉन्सेंट्रेशन, उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन देखी गई है लिम्बिक सिस्टम में, जिसकी वजह से बोला गया कि हाई नॉरएड्रेनालिन का कॉन्सेंट्रेशन भी रिस्पॉन्सिबल है सिजोफ्रेनिया सिम्टम्स के लिए। ओके, नेक्स्ट इज ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या है, ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये देखा गया कि अगर ग्लूटामेट का डिफिशियंसी हो रहा है तो उसमें भी सिजोफ्रेनिया लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, एक पोटेंट हेलुसिनोजन है फेनसाइक्लिडिन, वो एक्ट करता है थ्रू NMDA टाइप ग्लूटामेट रिसेप्टर्स। तो ये सजेस्ट किया गया है कि अगर डोपामिनर्जिक और ग्लूटामिनर्जिक सिस्टम में इम्बैलेंस हो रहा है तो भी वो सिजोफ्रेनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स कि अगर एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स में भी डिस्टर्बेंसेस होती है देन वो सिजोफ्रेनिया सिम्टम्स को ले आते हैं, इट कैन लीड टू सिजोफ्रेनिया। Okay, how we can manage schizophrenia? First is treatment. ट्रीटमेंट में क्या मेडिकेशंस देंगे या कोई थेरेपी आएगी। ठीक है, ट्रीटमेंट यूजुअली लाइफ लॉन्ग चलती है और कुछ टाइम के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन भी दिए जाते हैं या साइकोथेरेपी की जाती है या फिर कोऑर्डिनेटेड स्पेशलिटी केयर सर्विसेज दी जाती है। मेडिकेशंस में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और एंटी ट्रेमर ड्रग्स दी जाती है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स रिड्यूस करती है या इम्प्रूव करती है सिम्टम्स ऑफ सर्टेन साइकियाट्रिक कंडीशंस, और एंटी ट्रेमर्स ड्रग, ये ट्रिमर जो आती है, शेकिंग होती है, उसे ये कंट्रोल करती है एंटी ट्रेमर ड्रग्स। अब थेरेपीज में क्या हो सकती है, जैसे सपोर्ट ग्रुप। ठीक है, एक सपोर्ट ग्रुप मीन्स कि सेम काइंड ऑफ पेशेंट्स आर सिटिंग इन अ ग्रुप एंड दे आर डिस्कसिंग देयर सिम्टम्स, जिससे कि एक दूसरे को वो मोटिवेट कर पाए कि इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। फिर रिहैबिलिटेशन। What is rehabilitation? It restores function, ability and quality of life of people with physical impairments or disabilities. Rehabilitation मतलब कुछ आदतों को छुड़ाते हैं वो, और वो फिजिकल इम्पेयरमेंट जो होती है उसे ठीक करते हैं।
कॉग्निटिव थेरेपी जिसमें कि थिंकिंग पावर, मेमोरी इसे इन्हांस करते हैं। साइको एजुकेशन हुआ, फैमिली थेरेपी हो गई, बिहेवियरल थेरेपी और ग्रुप साइकोथेरेपी। इसमें क्या होगा, फैमिली में एक साथ ग्रुप में बैठकर कंसोल करना, मोटिवेट करना। बिहेवियर थेरेपी की बिहेवियर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। फिर ग्रुप साइकोथेरेपी जिसमें ग्रुप में बैठ करके सिम्टम्स को डिस्कस करना। समरी में कॉजेज बताया गया है, सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशंस हैं और उनके सिम्टम्स हैं। ओके, दीज आर द रेफरेंसेस। और ऐसी शर्मा अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीजेस, इस बुक को भी मैंने फॉलो किया है। तो आप इस प्रेजेंटेशन को एक बार देखकर फिर आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। So thank you. Hope you have understood the topic, and if you have any query, you can comment on the section. Thank you.